Hey everyone, how are you all? I hope you all are in good spirits. Let's start our video today about client-side filtering and server-side filtering. We'll see their difference and then after that we'll see how to bypass client-side filtering. Well, सबसे पहले filters की बात करें तो filters apply किए जाते हैं to check whether the input that is entered by user whether it is safe or not. उसमें कोई malicious payloads वगैरह तो नहीं है और या वो क्या वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है सो सबसे पहले हम दो तरह के हमारे पास फ़िल्टरिंग है सर्वर साइड फ़िल्टरिंग एंड क्लाइंट साइड फ़िल्टरिंग। सर्वर साइड फ़िल्टरिंग की बात करें तो सर्वर साइड फ़िल्टर्स आर द टाइप्स ऑफ फ़िल्टर चेक्स दैट एग्जिस्ट ऑन द सर्वर। ये वो फ़िल्टर्स होते हैं जो सर्वर अप्लाई करता है। जब यूज़र कोई भी इनपुट टाइप करता है तो वो इनपुट फॉरवर्ड किया जाता है सर्वर को फॉर वैलिडेशन। अगर जो यूज़र एंटर कर रहा है इनपुट अगर वो वैलिड है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज it throws some kind of error or exceptions. Next, we have client-side filtering. Client-side filtering are the types of filter checks that exist in the browser. ये वो filter checks होते हैं जो browser apply करता है। यूज़र कोई भी इनपुट टाइप करता है तो इनपुट को वेरीफाई किया जाता है बाय द क्लाइंट साइड फिल्टर्स। अगर जो डेटा यूज़र एंटर कर रहा है वो वैलिड है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज एन एक्सेप्शन इज थ्रोन टू द यूज़र। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो क्लाइंट साइड फिल्टर्स को बाईपास करना इजी है, इनको टैम्पर करना आसान है, जबकि क्लाइंट साइड फिल्टर्स को टैम्पर करना, इनको बाईपास करना डिफ़िकल्ट है। लैंग्वेजेस की बात करें तो क्लाइंट साइड जो लैंग्वेजेस हैं दैट इज़ यूजली HTML जावा, जबकि सर्वर साइड लैंग्वेजेस में हमारे पास PHP है, C# है। इसके अलावा सिक्योरिटी जो है वो क्लाइंट साइड फ़िल्टर ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, जबकि server side filtering provide better security to data. Okay, that was just a small introduction about the definitions and the difference between client side and server side filtering. Now let's do some practical stuff. Okay, my OWASP BWA is on the track, so let me open my browser here. It's on 192.168.1.8. Let's fire it up. One 168.1.8. We are going to do some practical stuff here on our Mutility here. हम बेसिकली SQL इंजेक्शन सबसे पहले अप्लाई करेंगे ऑन सिक्योरिटी लेवल 0। SQL इंजेक्शन पहले भी आप लोगों ने किया हुआ है, अगर आप लोगों ने मेरी से पहले वीडियो नहीं देखी जिसपे हमने टेस्ट PHP पे टेस्टिंग की थी, तो make sure to watch that video to better understand what exactly is SQL injection. So OWASP 2013 A1 injection SQL, and we are going to extract data user info. So click on that. एंड इफ़ यू नोट हेयर यहाँ पे तो हमारा सिक्योरिटी लेवल 0 पे सेट है, किसी भी तरह की यहाँ पे फिल्टरिंग अप्लाई नहीं की हुई। यू कैन register an account here if you want to. Okay, let's enter some random username here. Maybe let's go with Alice, and the password could be Alice123, Alice123, and signature it could be anything. Let's go for Pasta La Vista, and let's just create an account real quick. And okay, the account is all set. Now let's go to login page. Let me just by changing this URL here, like it's register.php. Let's try with login.php, and we are here at this login page. Okay, now let's enter some random stuff here. Maybe ASCD, and password 1234. Just some incorrect usernames, and it threw me this account does not exist. Okay, maybe अगर मैं just Alice enter करूँ, and let's go for the wrong password 123, and now it threw me this password incorrect error. It means my username is correct. आसानी से हम यहाँ पे यूज़र जो पासवर्ड फील्ड है उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, और वी कैन जस्ट एंटर सम पेलोड्स हियर. Okay, let me just
try with our favorite single quote. And password same, 1 2 3. Okay, and it threw me this failure is always an option. Okay, this single quote here, it broke our page functionality and it threw me this error here. Nothing else. Okay, what if I enter my payload here, Alice, and let's go for ABC single quote or 1 is equal to 1 hash. Let me show it to you. I'll inspect it, this password field here, and let's change the type from password to text. Okay, so this is the payload here, single quote or 1 is equal to 1 hash. Sorry, 1 or and 1 के दरमियान space. And now just try to log in. Exception occurred. Well, we should not get this exception. No, yeah, as you can see, we got this. We are logged in as admin. Okay, it was really easy, like just a single quote or 1 is equal to 1 hash. This simple payload did the work here and we got the admin access. Well, ये था ज़ीरो लेवल सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरह की इस पे फिल्टरिंग कोई इवेंट वगैरह इस पे किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी इस पे नहीं थी. सो नाउ लेट्स ट्राई टू चेंज और सिक्योरिटी हियर. आई फर्स्ट ट्राई लॉग आउट फ्रॉम दिस एडमिन अकाउंट एंड ये टॉगल सिक्योरिटी के बटन इस पर मैं क्लिक करूँगी एंड एज यू कैन सी मेरा सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए. It should be 1. Yes, security level 1, client side security. Okay, just enter a random, okay, Alice and 1 2 3. Let's see what we get. Dangerous characters detected. We can't allow this all powerful blacklist will stop such attempts. ओके, ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट है कि हमारे पास जो सर्वर साइड या क्लाइंट साइड उस पर क्या किया गया, जस्ट एक लिस्ट बनाई गई है एंड उसमें कुछ स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर किए हुए हैं या कुछ भी रैंडम स्टफ कि ये जो स्पेसिफिक लेटर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट अलाउड इनटू द साइट. ये साइट पे अलाउ नहीं करने. ये जो इस लिस्ट में जो स्टफ़ है वो साइट पे अलाउड नहीं है. अगर यूज़र एंटर करता है तो उसे एक्सेप्शन थ्रो करनी है, एरर देना है एंड उसके अलावा बाकी सब कुछ अलाउ है. ब्लैक लिस्ट एंड वाइट लिस्ट में इतना डिफरेंस होता है कि वाइट लिस्ट में जस्ट हम एक लिस्ट बनाते हैं एंड हम उसमें स्पेसिफाई करते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स, ये स्टफ़ अलाउड है, इसके अलावा और कुछ अलाउ नहीं होना चाहिए. जबकि ब्लैक लिस्ट इज ऑपोजिट, जिसमें हम जस्ट रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ऑन सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स. ओके, क्लाइंट साइड फिल्टरिंग बेसिकली जो है वो यू कैन से मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पेलोड एंटर की है. अगर उस पर क्लाइंट साइड फिल्टरिंग लगी हुई है उस एप्लीकेशन पे, उस वेबसाइट पे, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है, मेरा जो पेलोड वाली रिक्वेस्ट है, इट वॉन्ट गेट आउट ऑफ द ब्राउज़र. वो ब्राउज़र से बाहर नहीं जाएगी. वेबसाइट एप्लीकेशन उसे इंस्टेंटेनियसली ब्लॉक कर देगी. ओके, लाइक अगर मैं इवन वेब डेवलपर टूल्स यूज़ कर रही हूँ या मैं बर्प यूज़ कर रही हूँ, तो जो मेरी रिक्वेस्ट है, लेट्स अप्लाई सिंगल कोट हेयर एंड लेट मी गो टू माय नेटवर्क टैब एंड ओके, ये सिंगल कोट है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ब्लैक लिस्टिंग अलाउ की हुई है इस वेबसाइट पे. आई नो कि इस पे क्लाइंट साइड फिल्टरिंग है. मैं लॉग इन करने की कोशिश करती हूँ एंड एज यू कैन सी मुझे इंस्टेंटेनियसली मैसेज मिल रहा है. मेरी रिक्वेस्ट नेटवर्क टैब तक नहीं गई, मेरी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी तक, बर्प प्रॉक्सी तक रिसीव नहीं होगी बिकॉज इट्स बीइंग इंस्टेंटेनियसली ब्लॉक्ड राइट अवे. इट इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ द ब्राउज़र. सो एक वे क्या है क्लाइंट साइड फिल्टरिंग को यूज़ करने का कि हम बर्प स्वीट यूज़ कर सकते हैं. Okay, let me open my burp suite real quick and इसको हम किस तरह से बाईपास कर सकते हैं कि मैं एक रैंडम सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करती हूँ. उस रिक्वेस्ट को मैं बर्प स्वीट के थ्रू कैप्चर करती हूँ
एंड उसको फिर बर्ब स्वीट में कैप्चर करने के बाद हम उस पर पे लोड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जब वो बर्ब स्वीट तक पहुंच गई है तो वो वेबसाइट से बाहर चली गई है, उस पर किसी भी तरह की फिल्टरिंग अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद हम उस पर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। या हम देख सकते हैं कि जो है क्लाइंट साइड फिल्टरिंग हमने बाईपास कर लिया है, देन वी कैन फाइंड सम वेज टू गेट आउट ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इफ देयर इज एनी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जस्ट क्लाइंट साइड फिल्टरिंग लगी होती है, सर्वर साइड फिल्टरिंग नहीं लगी होती, तो हम आसानी से वी कैन गेट अवे फ्रॉम दिस। ओके, लेट मी ओपन माई प्रॉक्सी हेयर। यहाँ मैं बर्ब स्वीट का बिल्ट इन ब्राउज़र भी यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स कॉपी दिस URL and here's Burp Suite proxy. Let me turn off my intercept and open this built-in browser. It's taking a little time. Okay, अब just यहाँ पे let's enter maybe admin and 1 2 3 4 5 6 and simply log in. Now this request should be captured, HTTP history, and this is the last request here. Yes, these are our credentials. Now let's send this request to repeater, and now we can modify our payload here. 1 2 3 4 5 6 मैंने एक रैंडम सा पासवर्ड ऐड किया। अब इसके बाद हम अपना पेलोड अप्लाई कर सकते हैं, द सेम वन विच वी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी लेवल 0, सिंगल कोट और 1 इज इक्वल टू 1 एंड हैश। अब इस सारे को सिलेक्ट करके इस पर URL इनकोडिंग अप्लाई करनी है ताकि हमारा पेलोड ब्रेक ना हो। कंट्रोल U, sorry, or 1 is equal to 1 hash, select this part and press Ctrl U. Yes, so अब ये URL encoded है, and now let's send this request. 302 found. Let's follow redirection, and it's throwing me this 200 okay error. Now if let's try to search admin, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स बॉट में रिस्पॉन्स हेडर है लॉग्ड इन यूज़र एडमिन। अब इसे रेंडर करके भी देख सकते हैं, एंड लॉग्ड इन एडमिन, एज यू कैन सी वी गॉट द रूट लेवल एक्सेस। सो सिंपली जो सिक्योरिटी लेवल 1 था, यहाँ पे जस्ट क्लाइंट साइड फिल्टरिंग लगी हुई है जिसे हमने आसानी से बाईपास कर ली है बर्ब स्वीट को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जो है वो चीज़ें इतनी आसान हो। समटाइम्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी होती है जिसमें हमारे पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं जो अलाउड नहीं होते, बट वील सी दैट इन अनदर वीडियो। फॉर दैट फॉर नाउ जस्ट हमारा पर्पस था क्लाइंट साइड फिल्टरिंग को अंडरस्टैंड करना, इसे बाईपास करना। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड दैट वाज ऑल, easy peasy. See you in another video. Thank you so much.